बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले बातचीत हो रही थी सूरत अल-फील की तफसीर के बारे में। आई वाज स्पीकिंग अबाउट द कमेंट्री ऑन सूरत अल-फील of the Quran, and we mentioned that in the story, Abraha, the ruler of Yemen, he brought his whole army and sat on the borders of Makkah with them. मक्का के हदूद तक वो पहुँच आया और उसने ये पैगाम पहुँचाया कि मक्का का जो सरदार है, सरबराह है, उसके साथ मैं बातचीत करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक टू द लीडर ऑफ मक्का, Abdul Muttalib, who is the grandfather of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, came and spoke to him. And Abdul Muttalib first of all asked him what he had come for, what was his intentions, उसकी नीयत क्या है। तो उसने बतलाया कि मक्का के अंदर आकर काबतुल्लाह को मैं घिराऊं ताकि लोग इधर आकर इसकी इबादत न करें, मेरे यहाँ जो यमन के अंदर गिरजा है वहाँ जाकर इबादत करें और लोग वहाँ आएँ। और उसका मकसद सिर्फ यही नहीं था, बल्कि जैसे मैंने गुज़िश्ता कल अर्ज़ किया कि उसका मकसद ये था कि दुनिया की तवज्जो यमन के अंदर आ जाए ताकि टूरिज़म भी उधर हो, ख़र्चा भी उधर हो, लोगों की देखभाल भी हो, उस अबरहा और उसके इलाके की इज़्ज़त दुनिया के अंदर आ जाए और उसके साथ साथ एक किस्म का सियासी दारुल आसिमा बन जाए। सो इट कुड बी अ पॉलिटिकल capital of the world. And we know when there is tourism in any area, then the economy begins to boost. Then naturally, wealth begins to come in because people spend in the area, live in the area, buy food, buy clothes, amenities, etc. And if tourism was to vanish from any area, even in this era, आजकल के ज़माने में भी, then all the shops, all the businesses, all the restaurants, the transport system, they all get affected because the tourists coming from different countries are using those necessities and those needs. So tourism is a huge income for the economy, for the people, for the businesses, for the livelihood of the people of that area. तो इसलिए ये भी एक बड़ी चीज़ थी। तो उसने बहाना बनाया कि मेरे इस गिरजे के अंदर, in my church, one of those muwahideen, because before the Prophet sallallahu alaihi wasallam began his message, all those who were believing in one Allah, they were called muwahid, the believers in one Allah, जो एक अल्लाह को मानते थे। और चूँकि अक्सर जो हैं अभी तक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन और मज़हब और रास्ते पर अभी तक थे, अगरचे उनमें कुछ बुतों के पुजारी भी थे, लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसे थे जो अभी तक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर थे और वो मुवाहिद थे। तो उसने कहा तुम में से कोई एक मुवाहिद आकर उसने बदतमीज़ी इधर की है मेरे गिरजे के साथ, one of you has disrespected my church, so to retaliate and revenge for that, I'm going to knock Kaabatullah. हालांकि like I explained yesterday, that when these rulers, kings, governments, when they want to wage war upon a certain area, they usually find an excuse to topple a government, to sow discord and division amongst people and get people to fight, divide and rule. And this has been going on since history began, and even now many of these wars are fought with the pretext, with an excuse, बहाना बनाकर कि वहाँ चूँकि उधर वो बच्चियों को स्कूल नहीं पढ़ने देते, इसलिए हम पूरे मुल्क को के ऊपर हमला करेंगे. They're not allowing education for some girls, so we're going to go and topple the whole government and we're going to flatten the whole area. You see, there are ulterior motives, दूसरे इरादे होते हैं. तो अब्राहा ने अब्दुल मुत्तलिब को यही कहा, तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब फरमाया कि तेरे इन
फ़ौजियों ने मेरे जो 100 या 200 ऊँट गसब कर लिए, चोरी कर लिए, वो मुझे वापस दे दे। ये मेरी दरख्वास्त है। That's the request that I have for you, that the animals they've stolen from us, your army, give those back. So he became astonished and amazed. वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि आप पूरे मक्का के सरदार हैं और मैं जब आपको कह रहा हूँ कि हम आपके लोगों को यहाँ हटाकर काबतुल्लाह को मिस्मार कर देंगे, we're going to demolish काबतुल्लाह. So rather than talking about that and trying to protect that, you are more concerned about your animals, about your own wealth. And at that time, Khaja Abdul Muttalib gave a befitting reply, एक अजीब जवाब दिया. Something that is written in history, तारीख में वो लिखा गया है. फरमाने लगे, ये जो जानवर हैं इनकी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है. ये मेरे जानवर हैं, मुझे इनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी दी गई है. और काबतुल्लाह ये अल्लाह का घर है और अल्लाह ने ख़ुद इसकी ज़िम्मेदारी ली है इसकी हिफाजत की, लिहाजा वो ही इसकी हिफाजत करेगा. अगर वो न चाहे तो पूरी दुनिया की मखलूक और ताकत उसको कुछ नहीं कर सकती. अब्राहा ने कहा कि भाई इनके जो जानवर हैं, इन लोगों के, वो जानवर वापस दे दो. Give their animals back. अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों को ये कहा अपने इलाके के अंदर जाकर कि तुम लोग मेरी ज़िम्मेदारी हो, you're my responsibility. These people have come with a huge army. बड़ा लश्कर लेकर आए हैं, ऊँट इनके पास हैं, तलवारें इनके पास हैं, नेज़े इनके पास हैं. They have spears, they have arrows, they have swords. And it's best to move out of their way, let them do what they want. If Allah wants, He will protect His house. अपने घर की वो खुद हिफाजत करेगा. चुनाचे यही हुआ. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोटे छोटे जो परिंदे हैं वो भेजे हैं. Allah sent small birds, और उन परिंदों की नोक के अंदर, in their beaks they had a small pebble, and in both of their feet they had a pebble. And they came in huge flocks. हज़ारों की तादाद के अंदर ये छोटे परिंदे, जिनको अबाबील कहा जाता है, अबाबील. और ये आए और इन्होंने वो पत्थर छोड़े. और रिवायत में आता है, तारीख़ के किताबों में, कि वो पत्थर आता और जिस शख्स के ऊपर लगता वो इतने ज़ोर से लगता कि उसके जिस्म के अंदर जाकर उस हाथी के ऊपर लगता और उस हाथी के हड्डियां पसलियां वहाँ टूट जाती, जैसे बम तोड़ देता है सब कुछ. बड़े बड़े हाथी थे, हाथी बिल्कुल वहाँ, एक हाथी के ऊपर लगता है उसके बिल्कुल हड्डियां पसलियां ख़त्म हो जाती. दूसरे छोटे छोटे एक एक कंकर लगता. हाथी कितनी बड़ी चीज़ है, कितने टन का होता है. A huge elephant, and when that pebble would come down, it will not just kill him, it would destroy his meat and bones. And that's why Quran Kareem has painted a picture. They were like crushed up meat everywhere. It wasn't just that they died, it was they were blasted to smithereens, like little pieces of them, of the animals. And Quran has given us a similitude, एक मिसाल दी है समझाने के लिए. फरमाया कि जिस तरह एक जानवर घास खाता है और घास खाने के बाद उसको निगल देता है, उसको बाहर फेंक देता है, तो वो घास जो है वो टूटा हुआ बिल्कुल छोटे छोटे रेज़े बन जाते हैं. तो इसी तरीके से फरमाया कि ये जितने भी जानवर और जितने भी लोग थे, ये सब के सब जो हैं, जैसे वो खाया हुआ घास छोटे छोटे रेज़े बन जाता है, फरमाया इसी तरह कास्फ़िम मअकूल, खाया हुआ घास, भूसा घास, खाया हुआ घास की तरह जैसे जानवर खाकर उसको बाहर फेंक देता है, छोटे छोटे रेज़े बन जाते हैं. इसी तरीके से ये जितने भी जानवर थे, just like grass that has been eaten by an animal and then is thrown out
Once it's eaten, naturally it becomes very, very small, into small smithereens. Allah is saying their meat and their bones and the bodies and the whole of the army, the elephants and the people, they were into small little pieces like that. Except, हाँ बच गया था जो बड़ा जानवर था और अब्रहा। इन दोनों को इबरत के तौर पर बचाया ताकि ये वापस जाकर अपना पूरा किस्सा बता दें। फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सब को ऐसा बना दिया कि जैसे खाया हुआ घास, टूटा हुआ घास पड़ा हुआ होता है, इसी तरह उन सब के सब लश्कर को इस तरह बना दिया। ऐसे करते हैं। कॉल्स आई है, मुख्तसर वक़्त है, कैन यू शुड या कांट सी द टाइम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ से हमें बहुत सारे सबक हासिल होते हैं, और एक अहम सबक यहाँ से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कोई ताकत नहीं है। चाहे वक़्त की सबसे बड़ी ताकत हो, हाथी उस वक़्त सबसे बड़ी ताकत थी। अब्रहा अपने आप को घमंड के अंदर समझता था कि मेरे सामने कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोटे छोटे परिंदे भेजे ये बतलाने के लिए कि तुम्हें ख़त्म करने के लिए, तुम्हारी हस्ती को ज़ेर करने के लिए, टू फिनिश यू ऑफ एंड डिमिनिश यू एंड टू ब्रेक योर arrogance, I do not need to send huge torrential rainfalls or storms or any other of my powers, disasters. Allah subhanahu wa ta'ala wanted to show that sometimes I could send something as weak as small birds and empower them in such a way that they will be a cause of disaster for all of you. Allah Rabbul Izzat अपनी कुदरत बतलाते हैं, अपनी ताकत बतलाते हैं, बाज़ औक़ात इंसान को ढील देते हैं। एंड द अदर लेसन वी लर्न फ्रॉम हियर, इसे दूसरा सबक उलमा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते तो ये पूरा का पूरा लश्कर जिस वक़्त यमन से निकला था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उधर भी उनको ज़ाया कर देते, उधर भी उनको सज़ा देते, लेकिन उनको आने दिया आखिर तक, और फिर इधर जब आए तो इधर उनको फिर सज़ा दी। इससे पता चलता है कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ढील दे रहे हैं, अभी तक पकड़ नहीं हुई, तो मुतमईन नहीं होने का, क्योंकि अल्लाह की यहाँ देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं है। If Allah subhanahu wa ta'ala is giving you a chance, if he wanted in this story of Abraha, he could have punished the army and Abraha even while they were in Yemen or even on the way to Yemen, because it took them quite some time to get here close to Mecca. But he gave them a chance and a chance and a chance until they came onto the borders and verges of Mecca. Again, the lesson extrapolated from there, उससे जो सबक हासिल होता है कि if Allah isn't punishing you and giving you a chance, don't be satisfied that Allah is not going to punish me or is not going to hurt me or stop me. Allah sometimes gives you more time to indulge and to get into worse guna, worse wrong, and then He is to grab and take you and punish you and stop you. और फिर बाज़ औक़ात इंसान जो है वो भूल जाता है कि अल्लाह की ताकत, इसलिए जैसे अब्राहा ने कहा था, इसलिए हम भी हमेशा जहन के अंदर रहे कि जिस तरह अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि ये अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह ज़रूर इसकी हिफाजत करेंगे, उनका ईमान था। आजकल भी जब हमारे ऊपर सख्त हालात हो तो हमारा ईमान हो अब्दुल मुत्तलिब की तरह। गज़ा के अंदर जो हालात हैं, जो फ़लस्तीन के हालात हैं, वी आर नॉट टू फॉरगेट दैट। वहाँ जो जुल्म हो रहा है,
the cruelty that is taking place, the oppression that is taking place, the tyranny. The whole world is watching, but the powers that could stop it are, rather than stopping it, are assisting in this to carry on. जो हुकूमतें इसको रोक सकती हैं, रोकने के बजाय वो मदद कर रही हैं कि हम आपको असलहा, हम आपको ये चीज़ देते हैं, आप कैरी ऑन करें। अल्लाह की लाठी के अंदर आवाज़ नहीं होता, देर है, अंधेर नहीं है। वहाँ हज़ारों की तादाद में, there are thousands that are being starved at this moment. All these young innocent children, men and women and the elderly and the ill, those who are ill and ill in different senses, thousands that have been killed, but hundreds of thousands that are affected, because if one person is killed or massacred or slaughtered, remember this person has a brother or a sister, a father, a mother, a son, a daughter, uncle, aunt, nephew, niece, wife, children, etc. And all the whole of those family members are affected by each individual. एक शख्स से, you can see the scenes on the media of those young children holding little basins and bowls begging for food because they're on the verges of starvation. दुआ करो जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, या अल्लाह उस जुल्म को तू ख़त्म फरमा, मज़लूमीन की या अल्लाह तू मदद फरमा, और जो ज़ालिमीन है या अल्लाह उनको समझ दे ताकि वो जुल्म करने से रुक जाएं. We are not to forget what is happening in Palestine. I understand that there's many other newsworthy items around the world, but what those people want you to do is try to put this on the back burner. Don't do that. ऐसे करते हैं, दुआ कर लेते हैं. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन. या रब्बल आलमीन, तो हम सब को दीन की सही समझ नसीब फरमा, हम सब को दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमा. या अल्लाह जितने भी बीमार हैं, या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा, तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, और सबसे बड़ी बात वो तेरी रज़ामंदी है. या अल्लाह दुनिया और आखिरत के अंदर तू हम सब को अपनी रज़ामंदी नसीब फरमा, और जहाँ कहीं भी मज़लूमीन है या अल्लाह सब की मदद फरमा, और जुल्म से सबको नजात नसीब फरमा. सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन. मैं हूँ आपसे मुखातब, आपका मेहज़बान मौलाना फ़ज़लदाद, और हमारा ये प्रोग्राम हर हफ्ते मंडे और ट्यूसडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लाइव हुआ करता है. इसी के साथ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.